अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलफिश बात कर रही हूँ। आपको आवाज़ आ रही है ना? Okay. So, hi everyone there. It's me, Gulfish Dilaver, addressing you, the host for today's webinar. Let's stack up our career. So, first of all, I would like to ask a question. Are you people confused about career choices? Yes or no? Okay, most of people say yes. That's why you are here. So, so let me give you some guidelines regarding webinar. Who is coming? When you people can ask the questions? So, at the end of each speaker's briefing, we have allocated time for questions. Just pop up your question in that allotted time. We will consider it. So, so kindly don't pop up your questions while the speak. एक minute. Can you hear me all? Okay. So kindly don't pop up your questions while the speaker are presenting and make sure the question is relevant and sound professional and ethical. The rule number 2 is that there will be attendance form that you guys have to fill so that we can send you certificate of attending session. So without further delay, let's move ahead with the hope that this webinar will surely helpful to all of you joined. So welcome again. Let me bring your attention to the honorable guests we have. So we have three well-skilled speakers who are fresh graduates from our renowned Mehran University and currently working in best organizations. And sad news is each will be with us for 20 minutes only. So so be ready guys. Let us welcome our first speaker who never denied to perform her part in any working role, Miss Mashal Bhatti. Welcome Miss Mashal Bhatti. Now her professional intro is okay. Let me open this. Yeah. She is currently working in Sindh Revenue Board's IT department on Java development. She has expertise on Python, mainly machine learning, computer vision, web development, and data science. She's building in-house softwares for the department. So I hope within 20 minutes you will share your knowledge as much as you can, ma'am. Now over to you, ma'am. Okay, Assalamu alaikum everyone. As you heard that I am Mashal Bhatti, I welcome you all to this webinar and also I welcome you all to the world of software engineering. मुझे पता है कि आप लोगों में से मतलब मोस्टली नए लोग हैं जो कि अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आए हैं जिनका प्रोबेबली फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है। आप लोगों के लिए ये दुनिया बहुत नई है। आप लोग मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच के आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन बाय अ सिंपल क्वेश्चन कि व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू जॉइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मुझे पता है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि मैंने अपने भाई को देखा था, ही इज इन टू द सेम फील्ड, ही वाज डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग, और मुझे बहुत फैसिनेशन होती थी कि यार ऐसे भी होता है, हम ये चीज़ें बना भी सकते हैं। और फिर मैंने इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज्वाइन की। अब आप क्या सोच के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज्वाइन की है आपने? प्लीज ड्रॉप दैट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल रीड इट। और देखते हैं कि किस किस बैकग्राउंड से लोग आए हैं और क्या सोच के आए हैं। या तो आप अपनी मर्जी से आए हैं या आपकी फैमिली में से किसी ने आपको बोला कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। प्लीज ड्रॉप दैट इन द कमेंट एंड टिल देन मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ।
अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको जिस पोर्शन के बारे में गाइड करने वाली हूँ वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इट्स सब फील्ड। तो जैसे कि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। मतलब आपको जो है ना, आप आ गए, आप इतनी चीजें सुनते हैं, कोई हजार तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। हम जब नए आए थे तब हमें भी समझ नहीं आ रही थी कि यार इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बंदा क्या सीखे क्या सीखे। और फिर उन सब में से टू सिलेक्ट योर ओन करियर पाथ कि यार मुझे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जो है काम करना है या क्या, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि टिल देन, मतलब मैं फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में थी तब तक मुझे पता नहीं था कि अच्छा मुझे जो है ना क्या पसंद है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कौन सी चीज़ों पे काम करना है। और फिर मैंने जाके डिसाइड किया कि जो है ना मुझे पाइथन पे काम करना है। ऑल्दो मैं अभी जावा पे काम कर रही हूँ, दैट इज एन अदर स्टोरी। लेकिन जो है ना, आपको बहुत टाइम लगता है ये चीजें समझने में, और ऑनेस्टली हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। आपको पता नहीं होता, आप जो है जो चीजें सुनते जाते हैं या कुछ आपको जो है ना समझ नहीं आती कि आप क्या करें। तो दिस सेशन इज बेसिकली, मेरा पोर्शन ये है कि मैं आपको गाइड करूं, मैं आपको एक पाथ दिखाऊं, मैं आपको इतना समझा सकूं कि यार ये चीजें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होती हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। डोंट वेट कि अच्छा यार डिग्री हो जाए, हम फिर जो है ना 4 साल निकाल लेते हैं एग्जाम्स वगैरह देके, और फिर जो है हम काम करना स्टार्ट करेंगे। आपको अभी से सिंस डे वन ऑफ योर यूनिवर्सिटी यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग अप योर स्किल्स। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से एक फील्ड पकड़े, एक चीज पकड़े, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ भी एक चीज पकड़े और उस पर काम करना स्टार्ट करें, उसको अपना पूरा टाइम दें। एंड देन मेरी गारंटी है कि आप जो है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भाग्या, मैं और पूजा, हम लोग जैसे ही ग्रेजुएट हुए तो हमारे पास द वेरी नेक्स्ट डे, मतलब हम, मेरे साथ और भाग्या के साथ तो मोस्टली ये सीन था कि हम एक दिन जो है, हमारी फ्राइडे को यूनिवर्सिटी खत्म हुई है और मंडे को वी वर ऑन आवर जॉब्स। तो यही होगा कि आपके लिए कोई मसला नहीं होगा जॉब ढूंढने में या कुछ भी करने में, इफ यू आर स्टक टू वन ऑफ दो स्किल्स और आपने एक चीज को अपनी को अच्छा बनाया हुआ है। अब प्रोग्राम की कुछ ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो मैंने इनको जो है ना 3 मेनली हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि एक आपकी प्रोग्रामिंग फील्ड, कोर प्रोग्रामिंग जहाँ पे आ जाती है, अदर फील्ड्स भाई जिन लोगों को जो है ना प्रोग्रामिंग नहीं पसंद, जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है प्रोग्रामर ही बनने आए। ऐसा नहीं है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आए हैं तो आपको प्रोग्रामर ही बनना है, और भी बहुत चीजें हैं वो आपके पास है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड, वो है। और उसके बाद इन सब चीजों का जो मैं आपको बताऊंगी, इन सब को आपने अचीव कैसे करना है, स्किल्स कैसे अपनी डेवलप करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अब जो है पहले चलते हैं प्रोग्रामिंग फील्ड्स की तरफ। अब इसमें बेसिकली मैंने बहुत कम कम इन्फॉर्मेशन रखी है और बहुत सरफेस पे चीजें आपको बताने की कोशिश करी हूँ, जस्ट इंट्रो, कि आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा ये चीजें होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और मैं इन चीजों पे अपना करियर बिल्ड कर सकता या कर सकती हूँ। ज्यादा चीजें नहीं रखी हुई आपके पास, सिर्फ मैं 10 फील्ड्स का आपको बताऊंगी कि ये आपके पास ऑप्शन है, उनमें से जो कुछ भी आपको अच्छा लगे जस्ट स्टार्ट सर्चिंग ऑन देम, गूगल करें, और जो है ना स्टार्ट योर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस डे एंड दिस वेरी सेशन। अब उसके बाद अदर फील्ड्स में मैं भी, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बहुत कम और जो बहुत प्रोमिनेंट चीजें हैं वो रखी हैं। उसके बाद एआई, एंड देन लेट्स स्टार्ट विद प्रोग्रामिंग फील्ड्स फर्स्ट। कि भाई अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ गए और आपका किसी ना किसी, अभी तक आपका किसी ना किसी प्रोग्रामिंग फील्ड से तो पाला, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो पाला पड़ा ही होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सी प्लस प्लस पढ़ाते हैं, सेकंड में जावा पढ़ाते हैं, कुछ बच्चों को सी भी पढ़ाते हैं। तो जो है ना ये, इनको हम कहते हैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्ड करने के लिए जरूरी होती है। अगर आपको प्रोग्रामर बनना है, भले आपको कोई भी फील्ड उठानी है, जरूरी है कि आपकी लॉजिक्स अच्छी होनी चाहिए, और लॉजिक्स बिल्ड करने के लिए द बेस्ट थिंग इज ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कि आप इन पे अपना हाथ साफ कर लें, इन पे आप प्रैक्टिस कर लें, इनको अपना स्ट्रांग बना लें, तो जो है ना आपके लिए कोई भी प्रोग्रामिंग की जॉब करना या कुछ भी करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और जिन लोगों को इसमें मजा आता है, दे कैन सर्च फॉर एनी लैंग्वेज दैट दे वांट, दे कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, और वो जो है फिर उसके लिए आपके पास टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज भी मैंने दी हुई है। नेक्स्ट आती है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब प्रोग्रामिंग बेसिक आप जो है ना ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे आपको पता है कि आजकल फोन्स का जमाना है, मेरे पास फोन है, ठीक है, आप सबके पास फोन है, हम इनमें 1000 एप्लीकेशन चलाते हैं। अब इनमें ये सारी एप्लीकेशन कैसे चलती हैं, वो कैसे बनती हैं, ये सारी एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। और ये भी आप हर जगह पे देखें, यू हैव मोबाइल ऐप डेवलपर्स, यू हैव एंड्रॉइड डेवलपर्स, यू हैव रिएक्ट डेवलपर्स,
आपके पास हर जगह पे डेवलपर्स हैं। और जो है इनमें अब दो चीजें आ जाती हैं कि नेटिव एंड हाइब्रिड। नेटिव वो एप्स जो कि जैसे फॉर सपोज मेरे पास ये आईफोन है, अगर नेटिव ऐप है तो वो सिर्फ मेरे आईफोन पे ही चलेगी, वो मैं एंड्रॉइड पे नहीं चला सकती अगर मैंने एक नेटिव ऐप बनाई है अपने आईफोन के लिए। हाइब्रिड एप्स में बेसिकली ये होता है कि मैंने ऐप बनाई अपने आईफोन के लिए, लेकिन वो कोड ऐसे हुई हुई है कि मैं उसे एंड्रॉइड पे चलाऊंगी तो भी वो चलेगी, मैं उसे अपने वेब पे चलाने की कोशिश करूंगी तब भी वो चलेगी। बेसिकली वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। तो आजकल हाइब्रिड ऐप डेवलपर्स को बहुत ज्यादा पे किया जा रहा है और बहुत ज्यादा इनका स्कोप है, क्योंकि ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स स्मार्ट थिंग्स। तो जो है आई वुड सजेस्ट, या जिस किसी को भी अच्छा लगता है, तो फ्लटर एंड रिएक्ट आर वेरी न्यू जनरेशन और वेरी फास्टली ग्रोइंग लैंग्वेजेस, तो इनको जरूर देखिएगा अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो। उसके बाद आती है वेब डेवलपमेंट। वेब की टेक्नोलॉजीज, वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, ये अभी भी जैसे आई एम रनिंग MS टीम्स की वेबसाइट, तो भाई ये कैसे बनी हुई है, इसके बैकएंड पे क्या काम हुआ हुआ है, इसकी कोडिंग कैसे होती है। अगर आपको इन सब चीज़ों में इन सब चीज़ों को डेवलप करने में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो टुवर्ड्स वेबसाइट डेवलपमेंट। अब होता यह है कि वेबसाइट डेवलपमेंट में दो चीजें आती है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड बेसिकली ये कि जो आप इंटरफेस देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, कि कौन सा बटन कहाँ लगा हुआ है, कौन सी पिक्चर कहाँ लगी हुई है, हर चीज, दिस इज फ्रंट एंड। एंड फिर बैक एंड के भाई इनके पीछे डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, वट एवर, कैसे भाई लॉजिक परफॉर्म हो रही है, ये सब चीजें बैक एंड में आती है। फ्रंट एंड और बैक एंड को मिला के अगर कोई डेवलपर्स हैं तो उन्हें फुल स्टैक कहते हैं, जिनको फ्रंट एंड का काम भी आता है, बैक एंड का काम भी आता है। अब आप या तो फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, या बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं, या फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। उन सब की अलग टेक्नोलॉजीज है। अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है, स्टार्ट सर्चिंग फॉर द टेक्नोलॉजीज वन बाय वन। यहाँ पे मैं आपको टेक्नोलॉजीज का नहीं बता रही, बेसिकली मैंने सिर्फ उनके नाम दिए हैं। बाकी अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लग रही है तो आपको खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा उन्हें। उसके बाद अब ये सारी हमने डेवलपमेंट की बात कर ली कि भाई मोबाइल के एप्लीकेशंस भी बन गए, वेबसाइट्स भी बन गई, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बन गई। इन सब में से डेटा कहाँ से आता है? हर एप्लीकेशन के लिए, जो भी थोड़ी बड़े स्केल की एप्लीकेशन होती है, उसमें जरूरी होता है कि आप जो है कहीं ना कहीं से आपका डेटा आ रहा होता है, वो होता है डेटाबेस से। डेटाबेसेस एक अलग दुनिया है। उनके लिए अलग जो है बाकायदा रोल्स होते हैं, कि आपके पास डेटाबेस डिजाइनर्स होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, और किसी भी डेटाबेस डिजाइनर और एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना सकते, डेटाबेस के बगैर आपकी एप्लीकेशन नहीं काम करेगी। तो अगर आपको डेटा को और उसकी मैनिपुलेशन में इंटरेस्ट है, तो these are technologies for databases and you can always explore them if you are interested। तो उसके बाद अब प्रोग्रामिंग की कहानी को खत्म करते हैं कि भाई ये हो गई प्रोग्रामिंग। अब कोई ऐसा बंदा है जिसको प्रोग्रामिंग में नहीं इंटरेस्ट है, जैसे अभी मैंने एक पढ़ा कि भाई मुझे तो मैकेनिकल में जाना था, मैं तो जबरदस्ती जो है ना सॉफ्टवेयर में आ गया क्योंकि मिली नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि BBA वगैरह करना चाहते हैं, मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, बिजनेस की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में फंस जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर में इवन आपके पास उस चीज के लिए भी ऑप्शन है। सबसे पहले हम डिजाइनिंग की बात करते हैं। अब डिजाइनिंग के लिए बहुत जो है ना दुनिया में मिथ्स हैं कि लड़कियां डिजाइनिंग करें, और भाई कोडिंग तो लड़के करते हैं। इवन मेरे ऑफिस में जब मैं कोडिंग कर रही होती हूँ और आई कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, तो सम ऑफ माय सीनियर्स वर सेइंग कि आप कहाँ से कोडिंग में आ गए, आपको तो डिजाइनिंग करनी चाहिए। तो ऐसे नहीं होता। डिजाइनिंग की जो है ना, ये नहीं है कि लड़कियां डिजाइनिंग करें और लड़के कोडर करें। कोडिंग करें, लड़कियां भी कोडिंग कर सकते हैं और लड़के भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इट्स जस्ट बेस्ड अपॉन एवरीवन्स इंटरेस्ट। अगर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपका कलर सेंस अच्छा है, आपको चीजों की और डिजाइनिंग की समझ है, जो कि मुझे तो बिल्कुल नहीं है, तो यू कैन गो फॉर डिजाइनिंग। यू कैन गो फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक्स बना सकते हैं आप, फॉर सपोज पोस्टर्स एंड एवरीथिंग। यू कैन गो फॉर यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग, जैसे सारी एप्लीकेशंस होती हैं। अभी ये जो एप्लीकेशन चल रही है इसका भी कोई ना कोई इंटरफेस है, दिस इज UI/UX डिजाइनिंग। उनकी अलग टेक्नोलॉजीज है, उनके अलग टूल्स हैं, उन पे अलग काम होता है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू टेक आउट सम टाइम एंड एक्सप्लोर दीज थिंग्स। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग हैं मैनेजमेंट साइड जाना चाहते हैं, BBA करना चाहते थे लेकिन सॉफ्टवेयर में फंस गए, तो उनके लिए क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब हर कंपनी में, जैसे हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, अगर हम डेवलपर हैं तो हमारे ऊपर एक प्रोजेक्ट मैनेजर जरूर होता है, जो कि हमें काम भी असाइन करता है। हम जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं बेसिकली हमारी टीम्स को भी मैनेज करता है, और हर चीज उसी के अंडर होती है। तो अगर आपको लगता है कि यू हैव गुड मैनेजमेंट स्किल्स और आपको प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं लग रही, तो यू कैन ऑलवेज
सेट योर स्किल्स और आप जो है ना मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं. यू कैन बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर. और ये मैं बता दूं कि प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा डेवलपर से ऊपर ही होता है, वो उन सबको हेड कर रहे होते हैं. और उसके बाद फिर अब सॉफ्टवेयर बन गया, सॉफ्टवेयर का एक मैनेजर भी है, लेकिन सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा ये कौन बताएगा. उसके लिए आपके पास होते हैं हर कंपनी में सॉफ्टवेयर टेस्टर्स. बेसिकली इस फील्ड का नाम है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होते हैं हर टीम में. हर जहाँ पे भी सॉफ्टवेयर बन रहे होते हैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टर्स जरूर होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि भाई गलतियां कहाँ हैं जो है ना, और ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना हुआ है या नहीं है. अगर किसी को ये लगता है ना कि मैं लोगों की गलतियां निकालने में बहुत अच्छा हूँ, तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर टेस्टर और आपको बहुत अच्छी तरीके से जॉब मिल जाएगी. उसके लिए भी अलग प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हम टेस्टिंग करते हैं और नॉन प्रोग्रामिंग टेस्टिंग भी होती है, मैनुअल टेस्टिंग भी होती है, तो वो भी आपको सीखनी पड़ती है. एंड देन यू अप्लाई फॉर इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग. हर फील्ड का यही है कि आपको टाइम देना पड़ता है, आपको उसमें आपको टाइम देना पड़ता है, आपको जो है अपनी स्किल्स बिल्ड करने पड़ते हैं एंड दैट्स हाउ यू रीच इट. उसके बाद उसके बाद जैसे मैंने मार्केटिंग की बात की. अब मार्केटिंग पहले इतनी नहीं होती थी सॉफ्टवेयर के उसमें, लेकिन अब जो है ना डिजिटल मार्केटिंग बहुत पीक पे एक फील्ड चल रही है. शायद मोस्टली लोगों को इसका पता नहीं होता, लेकिन आप कोई भी जैसे वेबसाइट आपने सर्च की, आपको कैसे पता लग रहा है कि वो वेबसाइट टॉप पे आ रही है जो आपने सर्च की, या कौन से मैं किसी ब्रांड का सर्च कर रही हूँ वो कैसे टॉप पे आ रही है. उसके पीछे मार्केटर्स बैठे हैं, डिजिटल मार्केटर्स बैठे हैं, एसईओ वाले, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले लोग बैठे हैं जो कि उस पर काम कर रहे हैं. उन पे जो है ना अपनी टेक्निक अप्लाई करके और उन्हें हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं. आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, नॉर्मल कंपनीज में भी यही होता है, तो आपको उसको मार्केट करना पड़ता है. सेम गोज फॉर सॉफ्टवेयर कि आपने सॉफ्टवेयर तो बना दिया, लेकिन अब आपका सॉफ्टवेयर या आपकी वेबसाइट जो कुछ भी है वो लोगों तक कैसे पहुंचे, आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है. एंड राइट नाउ सॉफ्टवेयर के अगर आप बाकी सारी फील्ड्स के कंपैरिजन में देखें तो सॉफ्टवेयर डिजिटल मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स. इसमें बहुत लोगों को पे किया जा रहा है और इसीलिए मोस्टली लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो इसमें इतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं होती, ऑलमोस्ट नल के बराबर प्रोग्रामिंग होती है एंड इट ऑल्सो पेज यू गुड. तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन. अब यहाँ तक ये सारी, उसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन आई हैव ट्राइड टू मिनिमाइज द इंफॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल. अब चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी दुनिया है. आप अपने आसपास अगर सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को समझ के 2 मिनट के लिए सोचेंगे ना, तो आपको हजारों उसके एग्जाम्पल्स नजर आ जाएंगे. जैसे मैं अगर वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी सब फील्ड्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 रखी हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, ताकि आपको पता चले कि इन चीजों पे काम हो रहा है और हम भी इन चीजों पे काम कर सकते हैं. मशीन लर्निंग इज बेसिकली मशीन को सिखाना. आपने सुना होगा कि भाई एलन मस्क का किसे नहीं पता आजकल, ही इज लाइक द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ. ठीक है, अब एलन मस्क की एक कंपनी है टेस्ला और बेसिकली वो उससे बहुत पैसे कमाता है. टेस्ला क्या कर रही है, टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना रही है. सेल्फ ड्राइविंग कार्स एज एन गाड़ी जो खुद चले, जिसे किसी ड्राइवर की जरूरत ना हो. अब वो गाड़ी कैसे खुद चलेगी, उस पे पीछे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स लगे हुए हैं जो कि उसी को लर्न कराते हैं और उसको जो है ना ऑटोनोमस बनाते हैं. इसके अलावा आप हेल्थ में देखें, आप और इतनी सारी फील्ड्स में देखें, हर जगह पे आपकी मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही. मैं पर्सनली मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. आई एम प्लानिंग टू परस्यू माई मास्टर्स इन दैट एज वेल, क्योंकि ये एक तो बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है. अगर आप इस पर थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि हाउ इंटरेस्टिंग इट इज और कितना इस पे काम हो सकता है, कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. एंड बेसिकली इट ऑल्सो पेज यू वेरी वेल. अगर आप अच्छे AI डेवलपर या डेटा साइंटिस्ट बन जाए तो यू कैन बी द हाईएस्ट पेड पर्सन इन योर ग्रुप, मे बी डेवलपर से भी, नॉर्मल डेवलपर से ज्यादा. तो इसकी जो है ना बहुत, इसमें इतना कुछ है समझने के लिए, इतनी इसकी सब टाइप्स हैं. अगर आप सिर्फ जो है, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन सर्च एंड यू विल सी के इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू बी. सेम गोज फॉर डेटा साइंसेस के डेटा साइंसेस इज आल्सो पार्ट ऑफ AI. डेटा साइंसेस में ये होता है बेसिकली कि
you have data and you have to fetch out information from that data. अब what kind of information वो डिपेंड करता है कि डेटा किस किस्म का है. आपकी दुनिया डेटा से भरी हुई है. अब यहाँ पे सिर्फ मैं बात करूँ तो मेरे पास आप स्टूडेंट्स का डेटा आ गया, कौन से स्टूडेंट्स आए, और मैं उसमें से 1000 किस्म की इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हूँ. तो कंपनीज एंड एवरीवेयर जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे भी डेटा साइंसेस पे बहुत काम हो रहा है कि लोगों का डेटा है, कंपनीज का डेटा है, दे आर फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट, एंड इस पे पूरी दुनिया में भी बहुत काम हो रहा है. तो डेटा साइंसेस इज वन ऑफ द वेरी लीडिंग फील्ड्स इन सॉफ्टवेयर राइट नाउ, और इसका बहुत सारे लोगों को ज्यादा पता नहीं होता. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि अब शायद पाकिस्तान में कम काम हो रहा है और बाहर ज्यादा हो रहा है. लेकिन इफ यू वांट टू एक्सप्लोर इट तो जो है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हाईली पेड टू. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आपको जाना है तो बेसिकली यू हैव टू बिकम अ पाइथन और आर लैंग्वेज डेवलपर. पाइथन ज़्यादा यूज हो रही है पूरी दुनिया में, तो जो है ना आपको पाइथन से स्टार्ट करना पड़ेगा. बेसिक पाइथन से लेकर एडवांस कैसे जो है ना एल्गोरिथम्स बनते हैं, कैसे न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं, हर चीज़. एंड पाइथन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज. मैं खुद क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने पाइथन पे काम किया हुआ है, तो आई कैन से कि पाइथन इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज टू वर्क ऑन. अगर आप में से कोई पाइथन डेवलपर बनना चाहता है तो इट्स वेरी गुड एंड यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर इन इट. अब यहाँ तक ये सारी बातें हो गई. अब उसके बाद मैंने ये सारी फील्ड्स के नाम रखे हुए हैं जो कि विच आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि ये थोड़ी एडवांस्ड है. लेकिन देखें आपके पास कितने ऑप्शंस हैं. यू हैव लाइक so many options and you just have to pick out one जिसमें आपका इंटरेस्ट है. सबसे पहली बात तो ये कि एक चीज को पिक करें. ऐसा नहीं कि मैं ये भी सीखूंगा. सीखना इज फाइन, लेकिन करियर की जहाँ पे बात है तो आपको एक स्किल को अपने को बहुत मजबूत बनाना होगा कि हाँ भाई अगर मुझे जो है जावा डेवलपर बनना है तो मुझे फिर जावा पे ही अपना सारा टाइम देना है. मुझे फिर बाकी चीजें साइड में थोड़ा बहुत देखती रहनी है, लेकिन एक चीज को पकड़ें और उस पर काम करें. एंड ऐसे जो है ना you will be successful for sure अगर आप एक चीज को अपने माइंड में बिठा लेंगे कि this is going to be my career path for the next 4 years. उसके बाद अब ये सारी चीजें हो गई आपके पास, आपको पता चल गया, मे बी आपने सोच लिया कि चलो भाई मुझे ये चीज अच्छी लगी है, मैं इसको आगे परस्यू करना चाहता हूँ. अब आप वो करेंगे कैसे? सबसे पहली बात तो यूट्यूब आप सबके पास है, इट्स फ्री, यू नो. यूट्यूब पे आप सिर्फ एक कीवर्ड सर्च करें ना तो आपके पास 1000 वीडियोस आ जाती हैं. आपके पास ट्यूटोरियल्स पड़े हैं, आपके पास प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, आपके पास प्रोजेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स पड़े हैं, क्या क्या नहीं पड़ा. आपको सिर्फ अपना टाइम और अपनी एनर्जी निकालनी है, आपको उन्हें देखना है और जो है आपको अपने उस पर फोकस करना है कि भाई मुझे अगर ये स्किल सीखनी है तो डोंट डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी आपको स्किल्स नहीं सिखाएगी, वो सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाएगी, वो आपको बताएगी कि ये चीजें होती है, लेकिन अगर आपको अपने स्किल्स डेवलप करने हैं तो यू हैव टू डू देम योरसेल्फ. उसके बाद कोर्सेज आप जो है ना आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. कोर्सेरा हो गया, एडेक्स, यूडेमी, यूडेसिटी, डेटा कैम्प, जो कि आपको कोर्सेज देती है. उन कोर्सेज पे आपके पास असाइनमेंट्स होते हैं, आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आपसे डेवलप कराते हैं बाकायदा, आपको सही से जो है ना ऑनलाइन ही पर आपको सिखाते हैं. एंड देन दे ऑल्सो गिव यू सर्टिफिकेट एट द एंड. उस सर्टिफिकेट को आप अपनी सीवी में लगा सकते हैं. दैट विल वैल्यू योर सीवी और एड वैल्यू टू योर सीवी. और आगे अगर आप कहीं अपनी सीवी दिखा रहे हैं तो सामने वाले को पता चलेगा कि यार इस बंदे ने कहीं से प्रॉपर सीखा है, इसको अगर ये सर्टिफिकेट मिला है तो इसने इनके प्रोजेक्ट्स भी किए होंगे, इसने क्लासेस भी ली होंगी, इसने टेस्ट वगैरह भी पास किए होंगे, तभी इसको मिला होगा. सो इट इज़ बेटर कि आप जितने सर्टिफिकेट्स अपनी सीवी में ऐड कर सकें करें, और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड कोर्सेज करें. उसके बाद सेल्फ स्टडी, एज आई टोल्ड यू कि आपको खुद अपने आप ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी. आपको जो है ना यूनिवर्सिटी वाले आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे या कुछ भी, लेकिन अगर आपको कोई भी स्किल डेवलप करनी है, आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आपको सेल्फ स्टडी अपने ऊपर टाइम देना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन मेहनत करनी पड़ेगी, आपको यूट्यूब कोर्सेज हर चीज जो है ना आपको खुद ही करना पड़ेगा. दिस इज द की पॉइंट ऑफ एवरीथिंग. उसके बाद स्टैक ओवरफ्लो है, गिटहब है आपके पास. मे बी ज्यादा लोगों को इसका पता ना हो, फॉर द न्यू बैच स्पेशली, लेकिन आपको पता है कि एक डेवलपर की जिंदगी स्टैक ओवरफ्लो के बगैर उसमें सिर्फ अंधेरा होता है. मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं स्टैक ओवरफ्लो के बगैर जरा सी भी डेवलपमेंट कर सकती हूँ, बिकॉज इस पे
इतनी आपको हेल्प मिलती है, ऑनलाइन कम्युनिटी इतनी जो है ना आपकी हेल्पफुल होती है, आपको आपके सारे एरर्स वगैरह सॉल्व हो जाते हैं। सेम गोज फॉर गिटहब, लोगों के कोड्स पड़े हुए हैं, डू योर ओन कोड, लोगों के कोड से जो है कंपेयर करें, सी व्हाट पीपल आर डूइंग, सी व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स पीपल आर वर्किंग, वहां से सीखें। आपके पास सीखने के लिए बहुत बड़ी दुनिया है। यू जस्ट हैव टू मेक योर ओन विल कि हाँ भाई मुझे ये चीज सीखनी है, एंड देन सी कि हाउ मेनी डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। So that was all from my part. Thank you so much. I have given my contact details. अगर आपको जो भी चीजें मैंने बताई उनमें से कोई भी चीज थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, just select it, start searching on it. आपको कोई हेल्प चाहिए, मैसेज मी anywhere you want, email me, जो भी। और जो है ना, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू, आई विल ऑलवेज बी देयर टू गाइड यू कि हाँ भाई आप ऐसे करें ऐसे करें। एंड बेसिकली इस पूरे का मतलब ही यही था कि आपकी एक किस्म की गाइडेंस हो जाए, जिनको प्रोग्रामिंग का समझ नहीं आ रहा, जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि जो है आप कैसे चीजों को आगे ले जा सकते हैं। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू कैन ड्रॉप इट इन द चैट, एंड आई विल नाउ हैंड ओवर the session to Pooja and Bhagya. Thank you so much. So let me first bring your attention to the next two speakers we have. The next speaker we have is Bhagya Sheri. Like, she's a software developer at PMA Capital Management Limited. She have a great skills in Java, Android, PHP, and JavaScript. Apart from this, she have expertise in full stack web, MVC approach, Python blockchain DApps, and also she is exploring PHP frameworks nowadays. The last speaker we have is Pooja Kumari. She is associate software. I guess she is disconnected. Can I continue? Yes, Pooja, you should continue and you should introduce yourself. No, I'm introducing. So last Okay. speaker we have is Pooja Kumari. She is associate software engineer at Pieces Labs. She believes that staying technically sound and self-starter is a road to success. That's how she destined her career. She has experience of Android, full stack web development, blockchain DApps, and these days she is working on Spring Boot. Now over to you, ma'am. So let me just share my screen. I guess it's shared. Can you observe my screen? Yes, Pooja. So let's continue part 2 and 3 of Let's Tech Up Our Career. So I'm Pooja Kumari and मेरा introduction अभी हुआ, and I'm having with me Bhagyashri. Bhagya. Bhagya. Okay, sorry, my mic was mute and I was introducing myself. Steps to start freelancing and some few resources. In third part, we will cover the LinkedIn profile importance and also the really requires and some Bhagya, your voice is not clear. नहीं अभी भी नहीं आ रही भाग्या।
What happened? Hello. Is it now audible? Yes. Okay. So it's okay. In online, we always have these glitches. So I was talking about second part of this webinar. The second is freelancing, and third we will cover the how to hunt internships and jobs. In freelancing, we will cover some introductory part and how to start and what are the steps and what market requires in internships and also the importance of LinkedIn profile and with some resources. Right? So let's discuss first what does it mean by freelancing. मतलब freelancing में होता क्या है? You are just selling your skills. Like you have the skills and you want to earn on the basis of those skills. आपके पास कुछ skills हैं और आप चाहते हैं कि आप उन skills के basis पे कुछ projects बनाएं, clients को approach करें और उसके basis पे आप earn करना चाहते हैं तो you can go for the freelancing. इसमें क्या होता है कि there are a lot of platforms जो आपको freelancing पे जहाँ पे आप कर सकते हैं. कुछ इसमें है फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर और एलेंस. बेसिकली इसमें क्या होता है कि इट्स लाइक यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड. आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते एंड यू डोंट हैव एनी फॉर्मल एग्रीमेंट कुछ टाइम के लिए, यहाँ पर कुछ बॉन्ड्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता. लाइक यू आर योर ओन बॉस. तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती. लाइक यू कैन स्टार्ट एट एनी टाइम और वर्क ऑन द प्रोजेक्ट्स. लाइक मैंने ऐसा देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स अर्न करते हैं और उस पर करते हैं. लाइक करना क्या होता है आपको, यार यू जस्ट हैव टू गो एट द प्लेटफॉर्म. वहाँ पे जाके अपने स्किल्स के बेसिस पे प्रोफाइल्स वगैरह बनाएं. ये पूरे स्टेप्स आपको आगे नेक्स्ट में आगे बताएंगी. सो इट्स जस्ट ईजी. आपके स्किल्स हैं एंड यू वांट टू अर्न. जैसे कि अगर आपको फोटोग्राफी आती है, आपको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, सिर्फ आप अपने पोर्टफोलियोज बनाएंगे, उन्हें दिखाएंगे आई कैन डू दिस दिस एंड दिस एंड आई कैन. आप उन पे जाके अपनी प्राइस बताएंगे कि मैं इतने प्राइसेस में ये काम करने वाला हूँ एंड आई विल बी डूइंग लाइक दिस दिस एंड दिस. सो मैंने ये भी देखा है कि आई हैव बीन हियरिंग कि मेरे लाइक लास्ट ईयर मैंने अभी अपने कलीग से ही सुना था कि उसे एक प्रोजेक्ट मिला था. लाइक उसमें था क्या, बस बेसिकली एक बटन ही था, उस पर क्लिक करने पे एक विंडो पॉपअप हो एंड व्हाट ही वाज गेटिंग $200. लाइक वाओ, काम क्या था, जस्ट अ बटन और उस पर $200. सो इजंट जस्ट एन ईजी थिंग एंड लाइक यू कैन डू एट एनी टाइम. सो व्हेन टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, तो इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती. लाइक यू कैन वर्क एट योर ओन पेस. आप कभी भी स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं, अभी भी करना चाहें तो कर सकते हैं. लेकिन पहले तो ये चीज़ हो कि आपके पास कुछ स्किल्स हों. लाइक कुछ स्किल्स हों जिनके बेसिस पे आप अर्न करना चाहें ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप फर्स्ट ईयर में आए हैं और अभी यू वांट टू डू अ फ्रीलांसिंग. ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग में ये होता है कि रिव्यूज़ भी होते हैं और कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं, स्टार्स वगैरह और ये चीज़ें होती हैं. इस पर आपकी प्रोफाइल पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. तो फर्स्ट आई विल रिकमेंड कि आप अपने स्किल सेट करें. सेकेंड थिंग इज़ स्किल सेट करने के बाद आपने प्रोजेक्ट्स बनाए. लाइक कुछ आपके पास दिखाने के लिए भी चीज़ें होनी चाहिए ना. क्लाइंट्स आपको किस तरह अट्रैक्ट करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए आपके पास जो आप दिखाएं और क्लाइंट्स आपको अप्रोच करें उनके बेसिस पे. तो फर्स्ट थिंग इज़ मेक योर ओन स्किल्स सेट करें. देन पोर्टफोलियोज़ बनाएं, लाइक अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के पोर्टफोलियो शो करें. एंड द थर्ड वन थिंग इज़ कि आप उनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे. आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, जिससे वो आपको अप्रोच करना चाहें, अप्रोच करें आपसे. लाइक आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी तभी वो आपसे एग्रीमेंट करेंगे ना कि मेरे प्रोजेक्ट पे मुझे इस प्रोजेक्ट को अर्न करना है और मुझे इस पे काम करके दें. सो देयर इज़न्ट एनी रेस्ट्रिक्शन, बट मेक श्योर यू हैव द स्किल्स, देन यू कैन गो फॉर द फ्रीलांसिंग. Now we know what is freelancing and what is the right time to start freelancing. But अब जैसे कि हम कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, तो अब हम सीखेंगे what are the steps to start freelancing. क्योंकि अगर हमें कोई प्लेटफॉर्म चूज़ करना है तो उस पर हमें अपनी प्रोफाइल बनानी होगी, और प्रोफाइल हम इस तरीके से बनाते हैं कि देयर आर मैनी फ्रीलांसर्स. जैसे आप इस दौर में देखोगे थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ वर्किंग पीपल आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर्स. तो जब हमारी प्रोफाइल इतनी यूनिक होगी और उसका सेलिंग पॉइंट ऐसा होगा कि लोग हमें काम दें, तभी हमारे पास लोग अप्रोच भी करेंगे और हमें काम भी मिलेगा. तो फर्स्ट स्टेप इज प्रोफाइल मेकिंग. आप चूज़ करो प्लेटफॉर्म, जो कि आजकल फाइवर इज़ वेरी इन, क्योंकि आप उसमें सबसे बेस्ट पॉइंट है कि आप $5 से अपनी अर्निंग मतलब स्टार्ट कर सकते हो. छोटा सा भी कोई स्किल है
you can start, but with full commitment and passion. So आपने प्रोफाइल बनाई, आपने 1 लाइन में अपने आप को डिस्क्राइब किया, इसके अंदर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे और ताकि वो आपको सही तरीके से कॉन्टैक्ट कर पाए और अपने जो भी स्किल्स होते हैं उनको मेंशन करें। तो हमारी सेकंड स्टेप जो है व्हाट दैट इज मेकिंग द गिग। अब गिग क्या होता है कि एक प्रोफाइल है, प्रोफाइल आपका होता है कि आपकी आइडेंटिटी होती है कि आप क्या हो और आप किस किस स्किल्स में आप पैशनेट हो। बट गिग क्या होती है, गिग ऐसा होता है कि आपको किन किन स्किल्स पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि एक प्रोफाइल पे आप मल्टीपल गिग्स बना सकते हो। लेट्स सपोज मैं हूँ, मुझे वेब डेवलपमेंट आती है तो मैं वेब डेवलपमेंट की गिग बना रही हूँ, मैं जावा की भी गिग बना रही हूँ, मैं एंड्रॉइड की भी गिग बना रही हूँ। अब उन डिफरेंट गिग में मतलब मैं डिफरेंट प्रोफाइल्स अपनी इंफॉर्मेशन दूंगी कि मैंने आज तक किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, एंड आई कैन रिव्यू, आई कैन रिस्पॉन्स गिव बैक टू यू आफ्टर फ्यू मिनट्स, लाइक 1 आवर कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग 2 आवर्स लिखते हैं, और आपको अगर डिलीवरी चाहिए तो हम इतने दिनों में दे सकते हैं। और लेट्स सपोज ऐसी इंफॉर्मेशन के अगर सिर्फ सिंगल पेज वेबसाइट है तो मैं उसको 1 दिन में बना सकती हूँ, और अगर डबल पेज वेबसाइट है तो मैं उसको लेट्स सपोज रिविजन्स में उसको $5 में एक्स्ट्रा पे करूंगी। तो दीज ऑल आर द थिंग्स विच वी नीड फॉर द गिग। नाउ वी विल रिव्यू सम द गिग जो कि पहले बनी हुई है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि गिग उन्होंने कैसे बनाई हुई है और अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद उसने क्या क्या चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। सो यू कैन सी द विजुलाइज दिस गिग कि उसने जावा के अपनी पोर्टफोलियो के इमेजेस डाली हुई है। अब उसने वो डाली हुई है कुछ प्रोग्राम्स है जिससे पता चल रहा है कि ये प्रोग्रामेटिकली काम करता है, और उसने प्रोग्राम्स तक की इमेजेस डाली हुई है, क्योंकि पोर्टफोलियो होता है। लेट्स सपोज इफ यू आर डूइंग फोटोग्राफी तो आप अपनी फोटोग्राफी का पोर्टफोलियो शो करते हो, और इसके अंदर आप अपनी कोडिंग है तो आप अपनी कोडिंग का पोर्टफोलियो शो करेंगे कि आप कोडिंग किस किस लेवल से कर सकते हो। और ये लोग इसलिए भी करते हैं कि ताकि उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस का लोगों को पता चले कि हम बिल्कुल प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मेंशन है कि 2 डेज डिलीवरी के 1 रिवीजन है, तो इनके ना कुछ पैकेजेस होते हैं कि प्रीमियम हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज, जो भी इनके कुछ पैकेजेस होते हैं कि आपको रिविजन्स कितने प्रोवाइड किए जाएंगे और कौन कौन सी फंक्शनलिटी, जैसे कि कोड का सोर्स कोड आपको चाहिए तब वो कितने पैसे चार्ज करेंगे, इन सब के हिसाब से ये गिग क्रिएट की जाती है और आप मल्टीपल गिग बना सकते हैं। अब यहाँ पे अबाउट दिस गिग कि आप उसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट, जैसे मैंने आपको कहा, आपको बताना होता है कि आपको ही वो क्यों चूज करें। जैसे कि आप इतनी सारी जावा डेवलपर हैं, आप में क्या बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, तो वो आप मेंशन करेंगे कि मैं 100% सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मेरा कोई कोड प्लेजराइज नहीं होगा, मेरी डिलीवरी टाइम पर होगी, और अगर आपको काम पसंद नहीं आता तो आई विल कैश बैक योर मनी। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और इस तरीके से कुछ लोग ऐसे करते हैं, स्टार्ट करने के लिए दे स्टार्ट विथ $5 to $10 एंड आस्क फॉर द अनलिमिटेड रिविजन, कि आपको अनलिमिटेड रिविजन लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है कि भाई ये बंदा तो ऐसा है कि बिल्कुल फाइनल काम होगा तभी हमें अप्रोच करेगा। तो स्टार्ट करने के लिए ऐसे भी लोग अपनी टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। सो दीज ऑल आर द टेक्निक्स फॉर प्रोफाइल मेकिंग एंड गिग मेकिंग। तो आप इन तरीकों से अपनी प्रोफाइल अच्छी बना सकते हो और यू कैन अप्रोच द मार्केट। बट फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जब आप फुली कमिटेड हो टाइम देने के लिए, आपके पास स्किल हो, तभी आप उसको अप्रोच करें तो इट इज बेटर। नेक्स्ट प्लीज। देयर आर फ्यू रिसोर्सेज जिनसे आप फ्रीलांसिंग को और बेटर तरीके से लर्न कर सकते हो, और जो आजकल टेक्निक्स यूज होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ताकि क्योंकि फ्रीलांसिंग ऐसी अप्रोचेस को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशंस मिली जाएँ, ताकि उनकी प्रोफाइल हाई मानी जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपका एक भी रिव्यू नेगेटिव हो गया तो आपकी प्रोफाइल डाउन जाना स्टार्ट कर जाती है। सो देयर इज़ अ ग्रुप जो कि है हाशिम सर्वर का, वो बहुत अच्छी फ्रीलांसिंग की गाइडलाइन देते हैं। आप ये ग्रुप ज्वाइन करें, ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। उसमें क्या होगा कि आपको जो भी अपनी प्रोफाइल बना लिया आपने उनके साथ शेयर कर ली, एंड ही विल गाइड यू कि आपको जो भी चीज़ें पसंद हैं, लाइक सपोज आपने जो लिखा है अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन वो आपको अट्रैक्टिव बता देंगे आप उसको मोर अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। और वहाँ पे और भी आपको फेलो मेट्स मिलेंगे जो आपको गाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और इनका यूट्यूब चैनल भी है, शायद ये वीडियोज़ भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और देयर इज़ अ फेमस ऑनलाइन कोर्स digiskills.pk। उसमें आप क्या कर सकते हो कि उसमें ना बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन उनका मैंडेटरी कोर्स फ्रीलांसिंग होते हैं। वो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं
आपको फ्रीलांसिंग के बारे में, एंड देन देयर आर अदर 2 ग्रुप्स विच आर आल्सो रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग, जिनमें फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग कर रहा होता है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मल्टीपल पीपल, वो आपको प्रोजेक्ट देंगे, आप उनके प्रोजेक्ट पे काम करके अर्न कर सकते हो उससे। देयर आर मैनी चांसेस एंड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ दिस फ्रीलांसिंग। और इसके साथ हमारा फ्रीलांसिंग का सेशन खत्म होता है। अब ओवर टू यू पूजा। तो हाउ टू अर्न इंटर्नशिप्स एंड जॉब। आप यहाँ पे आए हैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में, आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, लाइक यू मस्ट बी 60+ और 60 समथिंग लाइक दैट। तो आप में से आपको ही क्यों इंटर्नशिप मिले, आपको ही क्यों जॉब मिले, कैसे मार्केट को पता चले कि आप ही इस जॉब के लिए कैपेबल हैं या नहीं। आपके लिए आपको कुछ यूनिक चीज़ें करनी पड़ती है, लाइक यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन यूनिवर्सिटी। आपको सिर्फ अकेडमिक चीज़ों को ही नहीं कवर करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिकली सारा काम करना पड़ता है। जैसे मैं अपना और भाग्य का बताऊं और मशर का बताऊं, हम तीनों ने ही स्टार्ट से ही मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर हमने मतलब ये डिसाइड कर लिया था कि हमें सिर्फ एकेडमिक को नहीं देखना, हमें बल्कि प्रैक्टिकल चीज़ों को भी देखना है। लाइक स्किल सेट करनी है अपनी, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, सेल्फ प्रोजेक्ट्स बनाएं अपने और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करें और कॉम्पिटिशन्स वगैरह पे जाएं। और एक और चीज़, यू मस्ट हैव अ गूगलिंग स्किल्स। लाइक आपके पास गूगल है, यू कैन गूगल एनीथिंग। लाइक आप डिफरेंट इवेंट्स में जा सकते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स को सर्च आउट करें और वहाँ पे जाके अप्रोच करें उन्हें, मार्केट को अप्रोच करें। हमने भी यही किया था, यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में आए थे और डिपार्टमेंट के लेवल पे भी हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ओपन डे होता है और टेक आइडिया में हमने दिया था। और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जाके हमने उन्हें पता चल जाता है मार्केट वालों को कि देयर आर स्टूडेंट्स, मतलब कि जो एकेडमिक के साथ साथ मार्केट में भी अप्रोच कर रहे हैं। हमने भी ऐसा ही किया, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में गए और अपने सेल्फ प्रोजेक्ट्स बनाए। डिफरेंट कॉम्पिटिशन में जाके कुछ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन सर्च आउट करेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कैसे कॉम्पिटिशन्स हैं और क्या क्या मार्केट में स्किल्स हैं। लाइक इन सारी चीज़ों के बाद मार्केट को पता चलेगा कि कुछ स्टूडेंट्स अभी भी हैं जो काम भी कर रहे हैं, डिफरेंट प्रैक्टिकल काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करनी है। लाइक अभी से ही मैं आपको कहूँगी कि लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क है, लाइक जैसे आप फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं और अपने फ्रेंड से कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे आप प्रोफेशनल से मार्केट में जो इंडस्ट्री में लोग हैं, HR वगैरह जो आपको हायर करेंगे मार्केट में एंटर होने के लिए, वो उन सबसे आप कनेक्ट होंगे और अपनी प्रोफाइल अच्छे से अच्छे मेंटेन करेंगे। इसमें आप अपने स्किल्स वगैरह सेट कर सकते हैं, अपनी CV अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपने कोर्सेज वगैरह किए हैं, प्रैक्टिकली काम करना है तो कोर्सेज करें, सर्टिफिकेशंस करें, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएं, उन्हें भी यहाँ पे जाके मेंटेन करें। तो मैं आपको एक प्रोफाइल दिखाऊंगी यहाँ पे, मेरी ये दिखा देती हूँ। बेसिक इंट्रो होगा आपका, एक आपकी समरी होगी जिसमें अबाउट, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे पढ़ के मार्केट आपको अप्रोच करेगी। सबसे पहले मार्केट पढ़ेगी आपको ही क्यों अप्रोच करना है। अबाउट में आप मतलब कि मेन चीज़ें जो आपकी होती हैं वो चीज़ें आप सब लिखेंगे, करंटली व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट आर यू इंटरेस्टेड, और आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है वो सब लिखेंगे। देन आप इसमें डिफरेंट कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस वगैरह यूज़ अपलोड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस हो गया, इंटर्नशिप्स वगैरह का एक्सपीरियंस हो गया, या फिर सोशल। एक और चीज़, सिर्फ प्रैक्टिकली काम नहीं करना बल्कि उसके साथ साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करना है। वो भी सारी चीज़ें, अगर आप किसी सोसाइटी वगैरह में हैं, कोई चीज़ आप कुछ किसी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में वगैरह में है, वो भी आप अपनी एक्सपीरियंस में डालेंगे। इसके अलावा एजुकेशन में आप अपना डालेंगे, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो मशल ने आपसे शेयर किए हैं अभी, कॉर्सेरा, यूडेसिटी वगैरह, वो सब सर्टिफिकेशंस भी यहाँ पे डालेंगे। इसके अलावा अपने स्किल्स वगैरह भी यहाँ से ऐड करेंगे। स्किल्स और एंडोर्समेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके नेटवर्क के लिए। एंडोर्समेंट में ये होता है कि आपके जो भी नेटवर्क में होते हैं वो आपको मतलब कि कह रहे होते हैं, येस ही इज़ अ पर्सन, ही हैव दिस स्किल्स एंड ही इज़ वर्किंग ऑन दिस स्किल्स एंड। फिर उसके बाद रिकमेंडेशंस भी होती है, इससे भी बहुत ही अच्छी आपकी प्रोफाइल पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप अपने कलीग्स वगैरह से, सीनियर या जूनियर्स वगैरह से रिकमेंडेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या क्या चीज़ें अपने BE में अपने एकेडमिक के साथ साथ अकम्पलिशमेंट किए हैं, क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं आपको, क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कोई रिसर्च वर्क है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई मेंबर वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे।
सो इससे क्या होगा कि लाइक दिस इज़ द नेटवर्क वेयर यू कैन कनेक्ट विद द प्रोफेशनल्स। तो एचआर जो होते हैं मार्केट में, जिससे आपका बेसिकली इंटरेक्शन होता है कहीं पे ज्वाइन करने के लिए, वो क्या करते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे जाके सर्च आउट करते हैं कि दिस स्किल, मतलब कि यहाँ पे इस पोजीशन में ये स्किल है, तो दे जस्ट सर्च आउट फ्रॉम दिस सर्च बार, और वहाँ पे उस हिसाब से वो कनेक्ट होते हैं उनसे। सो मैं यही कहूँगी कि आप आज से ही, बल्कि अभी से ही जाएंगे इस वेबिनार के बाद, अपनी प्रोफाइल्स बनाएंगे, मेंटेन करेंगे। अभी से ही आप बनाएंगे तो लाइक एट द एंड ऑफ योर बीई यू विल हैव अ रियली गुड प्रोफाइल। और अभी ही आप प्रोफाइल मेंटेन करके हम तीनों के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और हमें मैसेज करेंगे येस वी हैव मेड आवर प्रोफाइल। सो ये है हमारे डिटेल्स लिंक्डइन के, और एंड में भी, पीपीटी के एंड में भी हैं, लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से भी हमें कनेक्ट हो सकते हैं। और आई एम होपिंग दैट यू विल मेक दिस प्रोफाइल। आज ही बनाएंगे और आज ही हमें मैसेज करके बताएंगे यस वी हैव मेड दिस प्रोफाइल। ओके, सो अब हमने जान लिया कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे होती है, कि लिंक्डइन प्रोफाइल में हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम जब अपने स्किल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हार्ड स्किल्स भी होते हैं और सॉफ्ट स्किल्स भी होते हैं। हार्ड स्किल हमारे टेक्निकल स्किल्स जिनमें हमें काम करना होता है, सॉफ्ट स्किल्स हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के हो गए, टीम वर्क हो गया, लीडरशिप स्किल्स हो गए, ये सारे हमारे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, आते हैं यूनिवर्सिटी में, हमें सिर्फ पढ़ना है, हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है, हमें कोडिंग करनी है, वो लग जाते हैं और वो कोडिंग सीखते भी हैं और वो किताबी कीड़ा बन जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको जॉब मिल जाएगी अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, और अगर आपको सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, लेट्स सपोज आपने सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी है, आप पूरा दिन क्लासेस को ऑफ कर रहे हो और सोसाइटीज़ आपने ज्वाइन करनी है, आप ना इवेंट्स पे जा रहे हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके कोलैबोरेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इफ़ यू आर नॉट टेक्निकली साउंड, आपको कुछ नहीं आता टेक्निकल में, आपको कोई ऐसी लैंग्वेज, एक भी आपका ऐसा स्किल नहीं है जो आप कह सकते हो कि आई एम बेस्ट एट, तो भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको जॉब मिलेगी। ये दो चीज़ें हैं, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, ये दोनों कंबाइन होते हैं तभी आपका एक माइंड बनता है जो कि आपको मार्केट में लेके जाता है। सो आई मस्ट रिकमेंड कि आप अपने 4 साल में ऐसे नहीं समझें कि मैं ये कल कर लूँगा या परसों कर लूँगा। स्टेप बाय स्टेप आप अपना कोई स्किल सीखते रहें और साथ के साथ सॉफ्ट स्किल्स पे भी फोकस करें। सिर्फ टीम वर्क पे, सिर्फ है ना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे फोकस ना करें, अपने क्लासमेट के साथ बोलें कि लेट्स मेक सम प्रोजेक्ट, ओपन डे आएगा, अभी काफ़ी इवेंट्स आएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने आप को ना ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल कंपनीज ये देखती हैं कि ये बंदा कितना वर्सेटाइल है, ना कि ये सिर्फ एक कंप्यूटर पर बैठ के ना हमें एक प्रोग्राम बना के दे देगा। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ वी हैव दिस मीम कि कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हो, म्यूट यूनिवर्सिटी से, इम्प्रेशन माइंड ब्लोइंग और आपको तो जॉब मिलेगी ही मिलेगी। अब ये तो सिर्फ एक मीम है, ये लगाने का मकसद सिर्फ ये था कि इन 4 सालों में अपने आप को इतना पॉलिश करना है, इतना पॉलिश करना है कि इंटरव्यू आपको खुद अप्रोच करें, एचआर आपको खुद बोले कि यस आई वांट टू हायर यू, प्लीज़ ज्वाइन अवर कंपनी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि 4 साल पहले जब हमने लोगों ने ज्वाइन किया था तो हमें भी लगता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड बहुत मुश्किल है या फिर इसमें कोडिंग कैसे होती है। मैं आपको अपनी बात बताऊं तो आई वॉज नॉट नोइंग कि ये C++ लैंग्वेज होती है, तो इसके अलावा भी कोई लैंग्वेजेस होती हैं। आई वॉज वेरी कन्फाइंड, मुझे इतना कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये दुनिया इतनी बड़ी है। आई वॉज द गर्ल जिसको इतना कंप्यूटर का नो हाउ नहीं था, जस्ट इंस्पायरिंग फ्रॉम ऑल दिस हैकिंग स्किल्स, और अपने भाई को देख के माई ब्रदर इज ऑल्सो IT में है वो, तो उसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा होता था और लोग उसकी तारीफ़ें करते थे कि ये बहुत अच्छा प्रोग्रामर है, कोडर है, तो मुझे वो सुनना था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। लेकिन इन 4 सालों की जर्नी को हाउ यू आर गोइंग इट, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम मेन बात पे आते हैं, CV और इंटरव्यू गाइडलाइन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन की प्रोफाइल एंड CV, नाउ बोथ आर सेम थिंग। लिंक्डइन बहुत अप्रोच होता है लेकिन उसके बाद आपसे वो CV मांगते हैं। तो अमल अकेडमी का जो टेम्पलेट होता है वो बहुत ज़्यादा आजकल इन है, क्योंकि CV उसमें बहुत सिंपल और सोबर तरीके से बन जाती है। वी कैन शेयर द लिंक विथ यू और ऑल्सो यू कैन गूगल इट एज ए गूगलिंग की आपके स्किल्स बढ़ेंगे। उसमें क्या होगा कि आपकी CV ऐसा होता है, फर्स्ट स्टेप जॉब को, अब जॉब आपको मिलने के 3 स्टेप होते हैं जो हर कंपनी में मेन होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज CV एंड लिंक्डइन प्रोफाइल, ये दोनों मैच कर गए, आपको किसी ने अपने लिए हायर कर दिया।
अब जो दिखना था वो तो बिक गया, आपको कॉल आ गई। नाउ यू वांट कि आपको आपके टेस्ट लिए जाएंगे, तो फर्स्ट कॉल जो होता है वो बहुत ही इनफॉर्मल सा होता है। वो आपसे पूछेंगे आप कहाँ से पढ़े हैं, क्या किया है आपने। तो यहाँ पे आ जाते हैं आपके सॉफ्ट स्किल्स। आप में कितनी टैक्टिक्स हैं, आप अपने सामने वाले बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट हो कि नाउ अपनी बातों से कि यू आर वेरी मच इनटू इन दिस टेक्नोलॉजी एंड यू हैव डन सो मच थिंग्स एंड यू कैन बी द वर्डफुल फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की चीजें आपको अपनी बातों से ही क्लियर करनी होती हैं। Then they will set up you will take your time and set up the second step will be the technical interview. I must say the third phase technical interview में वो आपके hard skills देख रहे होते हैं। बट हार्ड स्किल्स मतलब जो आपने प्रोग्रामिंग जिसके लिए आपका वो टेस्ट ले रहे होंगे कोई भी क्विज, बट आल्सो देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर सॉफ्ट स्किल्स। क्योंकि मैं यही कहूँगी सॉफ्ट स्किल्स आपको सिर्फ यहाँ तक नहीं, इंटरव्यू तक, इंटरव्यू के बाद जो आप जॉब कर रहे होते हैं तब भी बहुत काम आते हैं। लेट सपोज आप किसी प्रोग्राम आपको दिया है, आप फंस गए हो, हाउ यू आर अप्रोचिंग देम, हाउ यू आर आस्किंग फॉर हेल्प, ये सारी चीज़ें आप में तब आएंगी जब आपने टीम वर्क किया होगा, आपको ऐसे सिचुएशंस आए होंगे, और ये तब आएंगे जब आप इनको अपने इन 4 सालों में प्रैक्टिस करने वाले हो। तो ये सारे उसके बाद एट द एंड फिर आपकी HR से कन्वर्सेशन हो रही होती है। ये बहुत बात की बातें हैं। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि इस तरह का प्रोसेस होता है कि आपको सिर्फ CV बना के लिंक्डइन प्रोफाइल पे नहीं, अपने स्किल्स, इनर स्किल्स पे भी फोकस करना है, ताकि आप अपने आप को प्रेजेंट करने के बाद अपने आप को प्रूव भी कर पाओ कि यस आई एम वर्थ इट फॉर दिस जॉब एंड एवरीथिंग। और इंशाल्लाह उसके बाद ये जो मीम है ये सच होगा। ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं होगा, ये इसकी वजह से होगा कि म्यूट के लोग बहुत पैशनेट होते हैं, वो 4 सालों से काम करते हैं, तो उनको जॉब्स बांटो। और ये बिल्कुल ही मिथ है कि इंजीनियरिंग की जॉब्स नहीं है, इंजीनियरिंग ना जॉबलेस बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल एक मिथ है। अगर आप अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो तो इंशाल्लाह यू विल हैव अ जॉब लाइक वी हैव। और ये मैं ये नहीं कह रही कि हमारे पास जॉब है कि हमने काम किया, इट जस्ट वी वर गोइंग विद द फ्लो। और हमने किसी भी एक दिन को ऐसा नहीं सोचा कि अब कल करेंगे, परसों करेंगे। ये चीज़ हो रही है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, फोकस ऑन योर स्किल्स। आपको C++ पढ़ाई जा रही है, ऐसा कोई अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाओ कि बोलो कि ये बहुत डिफरेंट है, जाओ लिंक्डइन पे उसको पोस्ट करो। लिंक्डइन पे पोस्ट करने के बाद आस्क फॉर द रिकमेंड रिव्यूज, वो आपको रिव्यू देंगे, इम्प्रूव इट, दिस विल हाईलाइट योर प्रोफाइल, दिस इज गोइंग टू आपको पहुंचाने वाला है ये यहाँ पर। तो इट्स जस्ट नॉट इट्स द स्टार्ट। और अपने स्टार्ट को बहुत मजबूत बनाए और इन सारी चीज़ों पे जो हमने आपको बताई है उनको लेके चलें। थैंक यू। तो आज से ही आपने अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल मेंटेन करनी है, और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे प्रोफाइल बनाएंगे तो ही आपको एंड तक आप उसे मेंटेन कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप जो भी करते जाएंगे सब ऐड करते जाएंगे, CV को भी अपडेट करते जाएं और लिंक्डइन प्रोफाइल को भी अपडेट करते जाएं आज से ही। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जिनको शेयर कर रहे हैं हम, आपकी लर्निंग के लिए भी हैं, और कुछ जॉब्स और जो भी चीज़ें आपको इंटर्नशिप्स वगैरह करनी है वो भी चीज़ें हैं इसमें। टेक करो, वी हैव वन सर्टिफाइड टेक करो, भाग्यश्री, जो कि टेक करो सर्टिफाइड है, उसने भी अपनी इससे सर्टिफिकेशन ली है। डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ये, डिज़ाइनिंग का, मार्केटिंग का और प्रोग्रामिंग वेब का भी। तो आप यहाँ पे जाके इंटर्नशिप ये अप्रोच कर सकते हैं इनको, और सर्टिफिकेशन लेके। और इनका ये होता है कि दे विल सपोर्ट यू फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू मार्केट, वो आपको मार्केट तक भी बहुत सपोर्ट करेंगे और आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी यहाँ से। इसके अलावा कुछ ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप जॉब अलर्ट्स बाय सेमीकोलन, ये हमारे डिपार्टमेंट से ही कुछ सीनियर्स हैं उन्होंने बनाया है, दे हेल्प एवरीवन, और वो भी जॉब्स और वगैरह सब अलर्ट्स वगैरह देते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा interns.pk ये एक वेबसाइट है जहाँ पे इंटर्नशिप्स करवाते हैं, रिमोट इंटर्नशिप्स। लाइक आप आज से ही इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं रिमोटली। तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे भी डिज़ाइनिंग और डिफरेंट, शायद React Native का भी इंटर्नशिप का प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है इनका, तो आप यहाँ पे जाके भी इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। इसके अलावा ये 2 ग्रुप की और भी लिंक्स हैं यहाँ, ये भी आज से ही ज्वाइन कर लें आप, यहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। इसके अलावा फ्री कोड कैंप, ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्रीली कोर्सेज कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन लेते हैं, और ये बहुत ही वेल नोन है और इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज है, मतलब सभी करते हैं, बहुत ही अच्छी सर्टिफिकेशन मिलती है यहाँ से। इसके अलावा मशल ने भी आपसे बहुत से पोर्टल्स शेयर किए हैं, यूडेमी, यूडेक्स और कोर्सेरा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी जाके आप कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स, यू मस्ट स्टार्ट योर वर्किंग ऑन योर स्किल्स एंड डूइंग प्रैक्टिकल वर्क एंड ऑल। तो ये हमारी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप हमसे कभी भी किसी भी वक्त कनेक्ट हो सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी पूछना है या कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, डू कनेक्ट अस विद अस।
भाग्य की ये इन्फॉर्मेशन हो रही मेरी, और आज से ही प्रोफाइल ज़रूर बनाएं और हमसे ज़रूर कनेक्ट हो लिंक्डइन पे। सो थैंक यू। वी बोथ, बल्कि हम तीनों आपके मैसेज का वेट करेंगे कि किसने प्रोफाइल बना ली और कितनी अच्छी बनाई है। यस, लिंक्डइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे, क्योंकि जो पूजा को भी मुझे पता है और मुझे भी जॉब ऑफर जो आई हैं वो लिंक्डइन के थ्रू ही आई हैं, और मशल को भी ऐसे केस मिले होंगे, आई होप सो। और मतलब इतनी वर्थ है लिंक्डइन प्रोफाइल की, आप वहाँ पे असेसमेंट दे सकते हो, अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकते हो, एंड दैट विल बी शोन टू द HR, और ये सारी चीज़ें एडजस्ट बन के आपको बहुत बुलंदियों तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। Thank you so much for sharing your experience, sharing your wise suggestions. We will surely apply it, use it, and so for in the if anyone have question they can ask. So so we can end this webinar smoothly. Anyone? Okay, I guess no question is here. So thank you to the speakers for making this webinar wonderful with your presence. Thank you so much. And then thank you to our SES team, marketing, editorial, for making this webinar possible. And thank you to the audience who made this webinar interactive. So let us end this webinar if no one have any question. People are asking for the links. Actually, we will provide you the PPT because this PPT maybe will share on YouTube. तो उसके साथ आपको ये PPT मिल जाएगी, and you can. And yes, one more thing, that we are sharing here attendance form. So kindly fill it so you can get the certificate of the attendance session. So kindly fill it. Don't leave the meeting right now. Actually, there is a question, प्रोफाइल कैसे बनाएं? तो प्रोफाइल बनाने के लिए जस्ट गो टू द गूगल, राइट लिंक्डइन, जैसे आप नॉर्मली जीमेल का अकाउंट बनाते हैं ऐसे ही प्रोफाइल आप लिंक्डइन का अकाउंट बनाएंगे, एंड देन देयर विल बी अ स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन, आप उसको फॉलो करके ये प्रोफाइल बना सकते हैं. इवन इफ यू स्टार्ट मेकिंग प्रोफाइल यू कैन आस्क अस ऑन दी आई हैव शेयर्ड द Skype also, and you can also as well contact us on in Gmail as well. I hope it's clear. 027 software 027. Kindly guys fill this form, attendance form, so you can get the certificate of session. Okay, so thank you for joining us. Allah Hafiz. We will meet soon. So I am ending the meeting. Goodbye. Goodbye.